Uh, Now we are also live on our Facebook. So, dear and respected friend, thank you so much for your kind participation in today's Swadhyay Sahachakra dialogue. And today is a kind of very special day. Today we are going to talk about a thinker, a poet, and his work. We welcome Dr. Hello. Yes, we welcome Dr. Lalit Sharma ji, and today he will be discussing about his work, particularly Patal Se Prangan Tak. We welcome Professor Anant Kumar Giri, Professor at Madras Development Institute, Professor Gyan Glui, Minati Pradhan ji, all friends co-present here. Now we are also live on our YouTube platform. So many of our participants will join, particularly a student, they will join us from our Facebook platform. Let me give a kind of brief introduction to our circle. Swadhyay Sachakra is a circle of co-learning and mutual study, which is a kind of initiative of studying and learning together, self, culture, societies, and the world. Friends associated with this are eager to work and mediate with new horizons of thinking and new movements of social cultural change at work in our contemporary world. We study seekers such as Sri Aurobindo, Mahatma Gandhi, Chittaranjan Das, a creative soul from Orissa, and many others from around the world. We invite people from different fields of life to share their knowledge and practice to make this world full of beauty, dignity, and dialogue. Let me also give a kind of brief introduction to respected speaker of today's session, um, Dr. Uh, Lalit Mohan Sharma is a deep seeker, deep thinker, and he's a kind of seeker who involved in all sort of creativity in terms of academics and knowledge professionals, I would say. But he has also orientation of a practice. He's nurturing in a NGO called Harmony Daycare Center, and it looks after especially able children, uh, and more than 40 children he nurtured uh, almost every year. And he has also been part of social activity, particularly social responsibility. He was part of governing council member of a state war memorial at Dharamshala, and he is in Dharamshala, and we know Dharamshala is a place of creativity and spirituality. We know Dalai Lama and many of followers of Dalai Lama. They meditate there, and it's a beautiful place. So we can see a kind of reflexivity of that environment, that nurtured uh, aspect of reality in his writing as well. He has also worked with as an principal, and he has a deep engagement with political theory, literary critiques, and all. So, giving a kind of for giving a initiative discussion, I would like to invite Anant Kumar Giri to initiate a discussion, and then we'll invite Lalit Sharma ji for further. Namaste, Professor Sharma, Randhir, Minati, Gyan, and all friends. Greetings from the river and mountains here in Sepa, Arunachal Pradesh. And what a beautiful occasion to connect to Lalit Sharma ji and his work.
And as we are discussing his book in Hindi, I wish to share an experience that I just had here, that here in Arunachal Pradesh, far away from many parts of India, so our friends here, they learn Hindi. And my friend who teaches English here, he was telling that how from the beginning students learn Hindi, and he told that 50 years ago, the generation of teachers from Central India came and they taught Hindi to their forefathers, and that is how Hindi is a part of life world here. And many friends from Arunachal Pradesh, they write in Hindi, and he told me he read some very beautiful sayaris to me. He teaches English, and he's writing Hindi using the English alphabet or the Roman alphabet. And one of the sayari that he मैं इसको अंग्रेजी में बोलता हूँ, मैं आप देखा शब्दों से मैं आपको जो वर्णन किया, मगर इसको सुनकर दूसरी ओर आपको ही आता है. So therefore, there is also Mother's Day. So on this day, we look forward to being lectured by Dr. Sharma and his work. So looking forward to. Thank you for your participation and nurturance. Yes, Dr. Sharma. Yeah. मैं डॉक्टर रणधीर गौतम और डॉक्टर अनंत गिरी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ. और जैसे मुझे डॉक्टर रणधीर गौतम ने बताया था कि मेरी जो कविता पुस्तक नई आई है, पटल से प्रांगण तक उस पे चर्चा होगी, तो मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि मैंने 1978 में पहली किताब हिंदी की कविता की लिखी थी. उसके बाद कविता हिंदी में बहुत कम लिखी है और अंग्रेजी की पुस्तकें ज्यादा छपी हैं. हिंदी कविता की 7-8 पुस्तकें छपी हैं. और लेकिन पिछले वर्ष मुझे अक्टूबर 2 महीने कुछ इस तरह का जुनून आया मन में सारा के मैं 2 महीने लगातार हिंदी में ही कविता लिखता रहा, और उसी का ये नतीजा है कि ये किताब छपी है. इसमें 2-3 कविताएं पुरानी है, बाकी सारी उसी पिछले साल 2 महीने के अरसे की हैं. कविता मैं समझता हूं कि पहली बात यह कि कुछ कहने की आजादी होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. When we express something, we express a feeling, an emotion, we express a thought. तो थॉट की जो आजादी है व्यक्त करने की, विचार को प्रकट करने की, ये कविता की खास विशेषता होती है. मैं कविता शुरू करने से पहले मैंने एक ताजा ही किताब पढ़ी पिछले मास ही. अरुण तिवारी हैं, वैज्ञानिक हैं, वो साथी रहे हैं कलाम साहब के. उन्होंने सोक्रेटिस पे किताब लिखी है एक, और उस किताब का जो शुरू में फॉरवर्ड है वो कलाम साहब ने लिखा 2009 में. और उसमें वो लिखते हैं कि वो 2007 में एथेंस में गए, ग्रीस में. और जब एथेंस में कहते पहुंचा कलाम साहब कहते, तो मेरा मन हुआ कि मैं उस केव गुफा प्रिजन में जाऊं जहां पे कि सुकरात ने, जैसे हम सोक्रेटिस कहते हैं आमतौर पे, उन्होंने गर्लपान किया था, जहर पिया था. तो कलाम साहब कहते हैं मैंने अपनी इच्छा को जाहिर की. कुछ संकोच के बाद वो मेजबान मान गए. एंड ही सेज यू हैव टू क्लाइंब सम गुड वे अप टू एक्रोपोलिस वेयर द केव वाज. और कहते केव में पहुंचने के बाद उन्होंने थोड़ी सी अंदर रोशनी भी कर दी. कहते मैंने एक इच्छा व्यक्त की कि मुझे यहाँ पे कुछ देर
अकेला छोड़ दो। और तब क्या हुआ वो मैं आपको पुस्तक में से पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि अगर मंच पे होता बाहर कहीं तो मैं खुद ही उस बात को कहने का यानी कि कहने की हिम्मत करता। तो यहाँ मैं आपके साथ वो चंद लाइनें जो कलाम साहब ने लिखी हैं उस फॉरवर्ड में, केव में पहुंचने के बाद, वो आपके साथ आपको सुनाता हूं। कहते, इन द इनर स्पेस ऑफ माई माइंड, in the inner space of mind, some thoughts arrived as if from a very distant place. You are coming from the great democratic land of India, Kalam. You are coming from the great democratic land of India, Kalam. Do you know that it is in this great land that democracy was born? Great thinkers spread over several generations developed democratic concepts and refined the governance of the people by the people. I asked, "Oh Socrates, why did you sacrifice your life? Why?" I heard an echo, Kalam says. Without sacrifice, no great thoughts would have possibly transformed into action. I had to give my life to the world for freedom of thoughts. Kalam, tell the Indian youth, Kalam, tell the Indian youth to know their thoughts, refine their thoughts, live by their thoughts, and struggle for the freedom of their thoughts. This is inspirational. I found it very, very interesting and found it very good food for my mind. Without commenting further on this, I should like to share some poems as I've been told by Dr. Gautam. So I imagine the kind of time I'm given to read my poems, because somehow the late couple of years have been very fruitful. I had books of English coming in 2020, Eyes of Silence. Then 21, another book came, Parables, Fair and Flawed. Then last year came another book, There is No Death. And now this year, 23, I have this Hindi book. And meanwhile, I've also got ready a manuscript. I'm not trying to, maybe I'm sounding more like a schoolboy telling my work. But the point is, I've been able to do some work, especially after retirement, much more work than I would have been doing earlier. So I've been now 13 years retired from the government job. So this, right now, today, I sent a manuscript for an English book also, with the poems titled A Little Fire. So little fire is all of us need, even as cauldrons are burning all around. So I'll first recite the poem which carries the title of the book, पटल से प्रांगण तक। तो पटल, मुझे कई पूछते हैं कि पटल क्या होता है, तो बड़ा आसान सा, खैर वो मैंने तो सीखा है लोकसभा संवाद से। वहां कहते हैं मैंने जो कागज रिपोर्ट है वो संसद के पटल पे रख दी है, तो पटल का मैं उस हिसाब से मायने लेता हूँ, वैसे तो टेबल या टेबल टॉप जो भी है। तो पहली कविता सुना रहा हूँ, पटल से प्रांगण तक। आई होप आई एम ऑडिबल। सुन रहे हैं सारे सभी मेरी आवाज? यस। थैंक यू। प्रशासन के प्रचार हेतु गली मोहल्ले चौराहों पर, प्रशासन के प्रचार हेतु गली मोहल्ले चौराहों पर लगी बड़ी बड़ी होर्डिंग, मुस्कुराती हुई तस्वीरें फ्लेक्स पर उभरती छोटे बड़े नेताओं की, चिन्हित रहते हैं नारे गूंजते मानो हर घर मैदान व रोड शो में, उपलब्धियां अंकित होती संसद पटल के पन्नों पर, उपलब्धियां अंकित होती संसद पटल के पन्नों पर, और जब
भीड़ उमड़ती देर शाम या दोपहरी में किसी प्रांत या प्रदेश में, जहां कहीं चुनाव प्रिय विशाल जनगण आए या लाए जाएं, आंकड़ों की बरसात पर गड़गड़ाती तालियां और नेताओं के आवाहन पर यथास्थिति चिल्लाते कहें सभी जन, यथास्थिति चिल्लाते कहें सभी जन, गोली मारो सालों को या फिर जोर जोर से जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनाव अधिकारी सचेत हो गए, जलसे से पहले अनुमति होगी, इश्तिहार बैनर सब हटाने होंगे, हर हेट स्पीच पर प्रतिबंध होगा, नाटक का मंचन श्लाघनीय है, सरकारी होर्डिंग भी हटाने होंगे। चुनाव के सप्ताह व महीनों में स्वतंत्र चुनाव लोकतंत्र के लिए जैसे भूखे को भोजन, बेघर को पक्की छत, गरीब अनपढ़ की पढ़ाई व छात्रवृत्ति, संसद पटल सुलभ हो बन जाए शोभा हर घर के प्रांगण के तुलसी पौधे सी, संसद पटल सुलभ हो बन जाए शोभा हर घर के प्रांगण के तुलसी पौधे सी। तुम सुन पाओगी मेरे मन की, तुम सुन पाओगे मेरे मन की, मैं कह पाऊंगा मेरे मन की। आज सा खिन्न ना होगा चित्त तुम्हारा, आज सा खिन्न ना होगा चित्त तुम्हारा, कुम्हलाए नहीं या बिखरे केश तुम्हारे, मगर कब तक सहना होगा यूं अकेले। भटकता रहेगा समय से दूर देश काल, कब होगा मिलन क्षितिज के भाल पर। किसी एक दिन को तो आना ही होगा, किसी एक दिन को तो आना ही होगा, क्यों ना एक रात स्वप्न में प्रकट हो जाओ। ये कविता मैंने सुनाई एक और संविधान की सरगर्मियां, संविधान की सरगर्मियां, इसमें दो इसके छोटे छोटे हिस्से हैं। पहला है 20वीं सदी के 5वें दशक में मेरे देश भारत में लगा विवित्व सूर्य ग्रहण, जबकि विधि से मिलन के सुरमई क्षणों में गहराई दंगों की भयावह दहशत, अफवाहें बनी खबरें, अफवाहें खबरें बनी अफवाहें, शवों लदी रेलगाड़ी, लाखों शरणार्थी, मारकाट लूटमार या घर गली शहरों में देश के दो प्रांत बंगाल और पंजाब काट डाले अंग्रेजों ने, किए अंग भंग, छोड़ जाने से पहले बांट दिया भारत को, मान लिया आधार जिन्ना के धर्म को। दूसरा, बुद्ध के 2500 बरस बाद नुआखली से रक्त सने पांव की तड़प लिए गांधी बिहार कलकत्ता। बुद्ध के 2500 बरस बाद नुआखली से रक्त सने पांवों की तड़प लिए गांधी बिहार कलकत्ता अहिंसा सत्याग्रह करते रहे कि हाथों में छुपाई पिस्तौल बन गई विद्रुप्त रूप हिंसा का। संविधान सभा ने अधिकार सबके सब, सभी को, ना लिंग भेद ना धर्म व जाति का, दृश्य भयानक रक्तचाप दंगों का। मतलब मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि इतना रंग खून खराबा देख के भी पार्टीशन का, तब भी संविधान ने ऐसा फैसला किया बिना धर्म जाति के समान अधिकार देना वोट का, एक बड़े ही उच्च स्तरीय नैतिक साहस का उदाहरण है। सॉरी बीच में बोल रहा हूं मैं। कितने बेघर, कई लाख शरणार्थी, लाखों ने खोए भाई बहन व माँ बाप, खोई पूंजी संपत्ति, कई पीढ़ियों की कुशाग्र बुद्धि, सहज करुणामयी व दूरगामी सोच वाले सभासदों जनित चमत्कारी सरगर्मियां संविधान की सर्वधर्म संभाव भारत मेरे देश में समझ ना पाएंगे कभी धर्मांतरण सोच या धार्मिक कट्टरता के अड़ियल पक्षधर।
एक और थोड़ा सा अभी इसी रंग की है, एक और इतिहास की झालर। झालर में जो देखता हूँ पगड़ी पे भी होती है, पर्दों पे होती है। इतिहास की झालर, इससे भी 2-3 सेक्शन है, छोटा सा है। आज नई सदी के दूसरे दशक में हर घर गली दफ्तर भवन की भव्यता पर, आज नई सदी के दूसरे दशक में हर घर गली दफ्तर भवन की भव्यता पर, बड़े बड़े शहरों के पहचान पर भी इतिहास की रंगारंग झालरें टांगने का लोकप्रिय फैशन है। लोग बाग कौतूहल में ताकते रहते जब टीवी मंच पर गर्मा-गर्म बहसों का दौर देश प्रदेश को ऐसा व्यस्त करता कि ज्वलंत कई घटनाएं रोजमर्रा की समस्याओं के जमघट में इतिहास के वाटरप्रूफ शामियाने से बाहर, रोजमर्रा की समस्याओं के जमघट में इतिहास के वाटरप्रूफ शमयाने से बाहर मानसून बौछारों के गड़गच धुंधलके में खड़े खड़े भीग कर भीगते 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 ही रहते। दूसरा है, पढ़े लिखे विद्वानों के अपने मत होंगे, पढ़े लिखे विद्वानों के अपने मत होंगे, मगर वास्तव में आजकल इतिहास की दो ही है किस्में। एक इतिहास है हजारों सैकड़ों लाखों साल पुराना, दूसरे 20, 25, 50, 100 साल पुराना। अनसुनी बातें सुनने को मिलती, खुलती कई अनदेखी परतें, कई जाने पहचाने दृश्यों की तस्वीरें उजागर होती, जो कैमरे के भिन्न कोण से नए सच, नए रूप। तनिक सावधान रहना होगा, क्योंकि विज्ञान की डिजिटल यात्रा आम आदमी के लिए अपरंपार। क्या फोरेंसिक लैब बनेगा जनता दरबार? क्या फोरेंसिक लैब बनेगा जनता दरबार? तीसरा, दूर मार करती है आज की पैनी दृष्टि, नए नए औजारों से ऐतिहासिक शल्य क्रिया, नए नए औजारों से ऐतिहासिक शल्य क्रिया। एक किसी के पूर्वज रहे मुगल शासन में दरबान, बहुतेरी गुपचुप गड़बड़ हुई, किसी एक के बैंक खाते से एक बड़ी राशि उड़ा डाली, कर दी जमा दूसरे के नाम। कभी मुक्तिबोध पारखी थे कभी मुक्तिबोध पारखी थे, भविष्य वक्ता रहे, अंधेरे में कविता में कह गए, बड़े बड़े चेहरों पे स्याहियां पुत गई, बड़े बड़े चेहरों पे स्याहियां पुत गई, नपुंसक श्रद्धा सड़क के नीचे को गटर में छिप गई, कहीं आग लग गई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। अंतिम है, इतिहास की झालर से स्मरण हो आती पुरुष की पगड़ी का झालरनुमा पल्लू, नारी की साड़ी का पल्लू, सूती जरीदार सिल्की गौरवमयी इतिहास, परंपरागत पहचान, हजारों सालों से सामूहिक स्मृति में चिन्हित महाकाव्यों की कहानियां, सुनी नानी दादी से रात सोने से पहले, सुने किससे नाना या दादा से, गांधी सुभाष नेहरू के, कहानी भगत सिंह की, क्यों रात्रि में ही जला दिए रावी के तट पर। बिल्कुल आखिर है, कहीं एक दफा पढ़ा, 12 साल की बच्ची से एपीजे कलाम ने पूछा, बड़ी होकर क्या बनना चाहोगी? विकसित भारत का नागरिक, उसने कहा, विकसित भारत का नागरिक। उत्तर सुन, कलाम साहब की आंखें नम थी। आज के बच्चे ही बांधेंगे कल इतिहास की झालरें। कोई बीच में कुछ कहना चाहेंगे? मैं फिर उस हिसाब से मुझे बताएं कि
नहीं, बहुत बड़ी। Hello, Randhir, you are not audible. Huh? So now we can have some discussion on Lalit's poems, Minati and Randhir. Sir, you're not audible. Lalitji, you are not audible. Now it's okay. Now we can hear. Yes. Yes, yes. I'm in mute for a long time. Is it that? No, just for 1-2 minutes. Yes. That's right. Yes. Okay, ये दब गया होगा ना सर। ये सर एकाकी क्षण जरा हल्की सी हल्की मतलब कविता तो पूरी होती है, हल्की तो भारी कोई नहीं होती। एकाकी क्षण। पहाड़ी टीले के ठिगने से ठूंठ पर बैठ, पहाड़ी टीले के ठिगने से ठूंठ पर बैठ, कंधों पर पीली ओढ़नी लिए, दूर क्षितिज पीत वर्ण संध्या में घुल रहे इंद्रधनुषी रंगों से सम्मोहित। पहाड़ी टीले के ठिगने से ठूंठ पर बैठ, कंधों पर पीली ओढ़नी लिए, दूर क्षितिज पीत वर्ण संध्या में घुल रहे इंद्रधनुषी रंगों से सम्मोहित। क्या वह अपने सपनों में खोई रहती है? उसे हल्के बैंगनी रंग का छाता लिए मैंने देखा है, उसे हल्के बैंगनी रंग का छाता लिए मैंने देखा है। अचानक रुककर वह कैसे हरी भरी समतल जमीन से उतरती ढलान को देखती है, हल्के से सिर उठा ऊंचाइयों को एकटक निहारती है। किसी युवा का सम्मोहित होना और यूं निहारना पुलकित कर जाए मेरे हृदय को, सराबोर कर दे, भर दे सौंदर्य से जीवन के क्षणिक एकाकीपन को। क्या हुक्म है सर? अच्छा, एक हल्की सी और चीज, सम्मोहन। सम्मोहन ऊंचे मंच से, ऊंचे या फिर आत्मीय स्वरों में, ऊंचे मंच से ऊंचे या फिर आत्मीय स्वरों में हर किसी के साथ वह संवाद स्थापित कर जन जन की उम्मीदों की चर्चा यूं करता है। हर किसी के साथ संवाद स्थापित कर जन जन की उम्मीदों की चर्चा यूं करता है कि मानो उसने हर दूसरे के मन में झांका हो, समझियो सबकी पीड़ा। उमड़ता फैलाव सैलाब हर तरफ जनता, उमड़ता सैलाब हर तरफ जनता, टकटकी बांध कर देखती है उसे, उसी की आवाज में वह सुन रही अपने सपनों को। आप बीती सुनाते उसकी वाणी बोझिल हो जाती, आप बीती सुनाते उसकी वाणी बोझिल हो जाती, गला रुंध जाता। किसी कोने से तालबद्ध आवाजें उसी के नाम को ऊंचे स्वर में पुकारती हैं बार बार। किसी कोने से तालबद्ध आवाजें उसी के नाम को ऊंचे स्वर में पुकारती हैं बार बार। अगर कुछ समय देंगे तो बाद में से, अभी आप मेरे ख्याल बात करना चाहें, मैं सुनना चाहूंगा आपकी प्रतिक्रिया या कोई भी टिप्पणी। हाँ जी, should I mute myself? Okay, so maybe now we would have some discussion, Lalitji. Thank you. हाँ जी, ठीक है सर। Thank you for sharing. हम आपके आभारी हो। हाँ जी, हाँ जी। So
So friends, you can kindly share your thoughts on these poems, please. Maybe some of our participants do not understand Hindi, but poetry has a language which is understandable to some extent. So Minati, maybe you can initiate the discussion. Anant bhai, Professor Janal Singh Anand Sirji is there. You can invite him first. Okay. So, Sat Sri Akal, Professor Anand. So you can kindly share some thoughts. Professor Anand. Maybe he's taking some time. Minati, you can begin and then see some other participants and you can kindly request. Thank you so much, Anant bhai. I would like to first congratulate Dr. Lalit Mohan Sharma for his new book. And I would like to thank him also for sharing his beautiful poetries in our platform. Thank you so much, sir. So I have one question about, he was telling about the bilingual poetry. He writes in English and Hindi. So I just curious to know about how do you choose the subjects, in which one has to be written in English and which one has to be written in Hindi? I mean, does any specific things or whatever just flows you write? That was my get. Thank you. Is it a question? No, I didn't get it exactly. I didn't get Yes, the I was question. asking. Yes, I was asking as you were sharing, you were writing in English as well as in Hindi. Just I wanted to know, do you choose some specific subject or specific language? Like this one I will write in Hindi or this one I will write in English, or just it No, flows? I think in school till 10th we were using Hindi only. Once you go to college, maybe then English started. And I remember even in first year I had a sonnet published in the college magazine on my 70th birthday. So it starts English, Hindi goes together. But I had my first book in Hindi only. But because I've been teaching and been more into conversations also in English, so I felt more comfortable reading a lot of English literature than Hindi. Therefore, I think writing in English began. Although I do feel that I don't get many easily readers of English poetry. In Hindi, get a better audience. Maybe even the local also, there is a district language officer. We go on arranging conferences of poetry, Hindi poetry. But English is not much understood. That is one reason for me that I wanted to write a book in Hindi also. I wrote 2 novels also, but then Hindi is more easy. One thing in poetry is not much read and not much understood these days. But my favorites happen from that. You can guess, no idea. I had long back in 70s, I had enjoyed Dhumil a lot. I enjoyed Mukti Bodh. I enjoyed Agge. From that, you can see how Agge was in English and wrote in Hindi. And मुक्ति बोध की एक कविता में लंबी एक लाइन आती है, कविता कभी खत्म नहीं होती, कविता कभी खत्म नहीं होती, यानी कि poem never ends actually. We try to give it a circular ending or whatever, but does not, and poetry goes on and on. तो उसी लाइन से लेके एक किताब भी एडिट की गई है हिंदी पोएट्री की, जिसमें असाध्य वीणा अज्ञे की है, पटकथा है धूमिल की, बलदेव खटिक है जगुड़ी की, और ऐसे अलग कविताएं रखी, अंधेरे में मुक्ति बोध की. तो लंबी कविता का चलन रहा है. लेकिन जैसे आजकल मैंने पीछे अशोक वाजपेयी को काफी सुना, तो लोग पढ़ते आजकल उतने मिलते नहीं पढ़ने वाले. मैं खुद भी इतनी किताबें खरीदता हूँ, शायद तो हिंदी पोएट्री किताबें बहुत कम खरीदता हूँ. That explains, I think you don't have any apology to make. But poetry does have its own appeal, and we still recite Shakespeare and Keats and Eliot and Yeats.
in English, and Hindi I recite Mukti Bodh और धूमिल. But those poets were great. I mean, आजकल भी लिख रहे हैं हिंदी में, लेकिन जो धूमिल 70 में लिख गया वो आज पूरा पूरा सही है. आपको लगता है उसने आज ही बैठ के लिखा शायद धूमिल ने. आगे तो खैर है ही माशाल्लाह, कोई जवाब नहीं उनका. मैंने कविता के किताब के शुरू में, अगर आप पसंद करें, मैंने मुक्तिबोध की 4 लाइनें दी हैं यहाँ पे, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. उसकी कविता है अंधेरे में. तो अंधेरे में मुक्तिबोध की कविता, उसमें से मैंने 4-5 लाइनें शुरू में एज एन एपिग्राफ इस्तेमाल की हैं. बताओ तो किस किस के लिए तुम दौड़ गए, बताओ तो किस किस के लिए तुम दौड़ गए, करुणा के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ गए, बन गए पत्थर बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम. ये मुक्तिबोध. यानी कि, और जब हिम्मत वो लिख गए नहीं, आजकल मैं आपका अभी हम यहाँ कविता एक साहित्यिक माहौल में बैठे हैं. धूमिल जो उस वक्त लिख गया 70 में कि आजादी का एक थकवे पहिए का नाम है जो 3 रंगों को ढोता है. आजादी का 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है. अब ऐसी कविता लिखनी तो हमें, वो तो कहेंगे देशद्रोही है, तो उसको देश से नहीं प्यार है, जबकि इसको आराम से हम पढ़ के कभी बड़े हुए हैं. आजादी का 3 थके हुए रंगों का नाम जिन्हें एक पहिया ढोता है, या नेहरू के गुलाब पे वो कि हर एक प्रश्न का जवाब नेहरू के पास खाली एक, हवाई नेहरू के पास खाली लाल गुलाब है. तो ऐसी कविताएं तब लिखी जाती थी. आजकल सोचना पड़ता है. मेरे ख्याल आप मानेंगे इस बात को, मैं तो यकीन करता हूं इस पे. और इसीलिए शायद अंग्रेजी कविता ज्यादा नहीं समझी जाती, तो मैं सोचता हूँ शायद इसीलिए मैं आपके साथ बैठा हूँ. Thank you. Now I would like to invite Dr. Charu Sharma. She has raised her hand. Please, ma'am, unmute yourself and share your thoughts. Good evening. Congratulations, Dr. L.M. Sharma, on this new book of yours. I have first enjoyed the reading of your poems. जो मैम मिनाती बात कर रही थी about your choosing the subject. I've read your English poems also, and I feel that your subjects are nearly the same in English as well as Hindi. The thought process, be it in Hindi language or be it in English language, it is nearly the same subject, similar images, similar kind of a language. The only thing is it is an English language or a Hindi language. And of course, I really liked that poem Sammohan, because a poem like Sammohan is it's not just for a particular person. It goes for many people, many kinds of leaders all over the centuries, all over the ages and generations that we have been through in history. It goes to all kinds of autocrats, all kinds of dictators. I think right from Latin America to anywhere in the world, it would be like that. So when you talk something like Sammohan, a poem like Sammohan is something that would depict the speaking of many arrogant, autocratic kind of people. Thank you. चाहे वो नागार्जुन है, चाहे वो धूमिल है, जैसी बातें वो लिख गए हैं इतनी स्पष्ट, आज मेरा ख्याल नहीं कभी इसी बात कहने की. For that matter, even poets like Pash. जिसके पास थाली है, हर भूखा आदमी उसके लिए बद्दी गाली है. अब ये कविता जो धूमिल कभी लिख गए आराम से, और वो तो कहते कविता से होगा क्या, कहते मैं तितली के पंखों में पटाखा बांध दूं, क्या करूंगा. जैसी भाषा हमें वो श्रृंगार रस के पहले जब
आप कह लो पुराने काव्य से मिली थी, तो उससे तो कहते कविता नहीं मैं कह सकता। कहते क्या मैं तितली के पंखों में पटाखा बांध दूं? तो आपको भाषा नई गढ़नी पड़ेगी, जैसा कि धूमिल ने किया। और इवन धर्मवीर भारती की प्रमित्व से बहुत बढ़िया कविता है। और हम अक्सर मेरी गलती है कि मुझे ज्यादा हिंदी साहित्य के बारे में ज्यादा समकालीन ज्यादा पता नहीं है। एक अनूप सेठी लिखते हैं बॉम्बे से, बड़ा अच्छा लिखते हैं, मतलब बहुत कम लोगों में जानता हूँ जो अच्छा लिखते हो। हालांकि होंगे, वो मेरी नालायकियत कह लो आप, कमी है मेरी। Thank you, sir. Now I would like to invite Dr. Janan Singh Anand, sir. Please share your thoughts. हाँ हाँ करता हूँ मैं, एक मिनट। सुन रहा हूँ क्या? Am I audible? Yes, yes, you are audible. सुन रहे हैं sir. बड़ी तबीयत कितना है कहते बीमार से गए ढिल्ले सी तबीयत ठीक था। Doctor साहब, I have problems, कुछ मेरी wife and me both, but I felt impelled to listen to your poetry. और हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਸ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਸ। ਸੋ ਵਾਟ ਯੂ ਸੀ ਕਿ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, the way you are putting it, I think it is more straight than I find it in your English poetry. Or moreover, your poetry is highly contemporary. The way things are going on these days, you are giving them words to that experience, and there is a deadly honesty about it, deadly honesty. So I could not listen to much of your poetry because I was busy with other jobs here, but I did have a taste of it, and I really relished it, and I congratulate you, Dr. Sab. It is wonderful, diverting into your mother tongue. I always feel when we are writing in our mother tongue, we are closer to the home, closer to the earth. मदर टंग ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। हिंदी ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਲੈਂਗੁਏजेस ਨੇ। ਐਨੀਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੋਇਟਰੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਸਟਿਲ we are still poets. और poetry writing a poem on Yeats, ordinary क्या गया, poetry doesn't make anything happen, but it doesn't actually he mean that he changes that the context. Actually, that's what I have felt over these days or some months, that poetry is not written as a professional art. Only poetry. Fiction is written by professionals, drama is written by professionals, but poetry is written by merely as a hobby. People who are working, doing some other job, and then they start in their free time, they start writing poetry. So this is because we are not professionals, or we are not dependent on poetry. That is why it is a marginal art. Society also doesn't give us much importance. It is another way that we call ourselves legislators and all that. I don't believe in this thing. Anyway, my congratulations to you. Thank you very much. सर वो जो मैंने कलाम की सुबह बात की, मैं दोबारा कर रहा हूँ, बस जो सोक्रेटिस ने वो कहते, मुझे लगा उन्होंने कहा है ये कि अपने नौजवानों को बोलो कि अपने विचार बनाएं, विचारों को जाने, उनके विचार क्या है, उनको परिष्कृत करें, है ना, उनको रिफाइन करें, तो उनके लड़ें। अब ये जो विचार आइडिया है, थॉट का आइडिया है, वो तो इस जमघट में कहीं भी नहीं है। जब आप एक हर
शब्द को हर बात, जिस अगर आपने किसी भी आइडिया को नारा बना दिया, वो आइडिया खत्म कर दिया, सिंपल बात. When you turn any kind of good idea into a slogan, it is destroyed completely. और हम कहते हैं कि आइडिया नहीं मरता, आदमी मर जाता है, लेकिन यहाँ अगर राजनेता चाहें तो किसी भी अच्छे विचार को वो डॉक्टर साहब जो शब्दों की सेंक्टिटी है ना, आई थिंक वी आर नॉट मेंटेनिंग दैट. शब्दों के पीछे जो अर्थ है उनकी सेंक्टिटी है, वी आर वायलेटिंग इट वेरी बैड. ठीक है, ऑल द बेस्ट. Thank you, sir. Now I would like to invite Professor Gianluigi. He is from Italy and he is a co-traveler with us and a deep philosopher. Gianluigi, sir, please unmute and share your thoughts. Yes, thank you. Excuse me, I am not yes, perhaps now I am not visible. I don't know why. Excuse me, but yeah, well, there are some problems. Excuse me. Thank you very much. It was very interesting. Of course, I should read the text in a translation because I have no competence in Hindi. And therefore, I have some difficulties in judging the poetry and in writing, correctly evaluating the value of the poetry. And of course, I am very interested in them, and I will for sure try to read it eventually with the help of a person who can translate it from Hindi to English. Thank you very much. Thank you. Anybody else from the participants who would like to ask some question or share his or her thoughts? Please unmute and ask. I'm with, I agree with one concern raised by Jarnail Singh Anand. आप अगर देखेंगे हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने कैम्ब्रिज से अंग्रेजी में पीएचडी करने के बाद वो हिंदी में लिखना शुरू किए और आगे भी. तो ये जो एक आइडिया है कि मातृ लैंग्वेज, वो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियसनेस का पार्ट हो जाता है. और इसीलिए जो ट्रांसलेशन का सवाल है, अब गीतांजलि का ट्रांसलेशन कितना मुश्किल है. भले ही उनको उनके ट्रांसलेशन, गीतांजलि के ट्रांसलेशन की वजह से ही उनको नोबेल मिला, लेकिन ट्रांसलेशन करना कितना बड़ा चुनौती है. और शब्दों का निर्माण करना, ये भी एक बहुत बड़ी पोइट का एक हम कहिए कि इमेंसिपेटरी टास्क होता है. जैसे जितने भी आज़ादी के संघर्ष हुए, चाहे वो इमरजेंसी का समय हो, उसमें जयप्रकाश नारायण के संदर्भ से जितनी भी पोएट्री लिखी गई, उसका जो है पब्लिक एस्पायरेशन, तो वो बहुत बड़ी ज़रूरत है कि पोएट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और समाज की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को कौन बोले. ये जो दरबारी कवि जैसे होते हैं, दरबारी कवि का दौर आज और भी ज्यादा हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं लालच और वो सब चीजें, उनको कोई चेयरमैन बनना है, किसी को कोई गवर्नमेंट बॉडी का अपरेटस में आना है. तो पीड़ा जो होती थी, जैसे बहुत ऐसे कवि, मुक्तिबोध जैसे लोग जो सिर्फ लिखे. अभी हमारी मुलाकात हुई कनक तिवारी जी से, मुक्तिबोध उनके साथ पढ़ाया करते थे और मुक्तिबोध दुनिया भर के सारे लिटरेचर पढ़ते थे और उनको हर एक लिटरेचर में क्या नई बात हो रही है, उनको जानकारी हुआ करती थी. साथी त्रिलोचन जी भी मिले थे शिमला जी एक बार. जी, तो त्रिलोचन भी मिले थे एक बार शिमला.
तो कहने का मतलब जो हम अपने दायरा को सीमित रखते हैं, मुक्ति बोध के समय में सोशल मीडिया थी नहीं, लेकिन फिर भी उनका क्वेश्चन होता था कि रसिया में क्या हो रहा है या अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिकन लिटरेचर में क्या हो रहा है। हमारे आज के जो लिटरेचर के लोग हैं, हम देखते हैं कि उनमें वो दूर मतलब जो कहते हैं ग्लोबल कंसर्न, उसकी एक कमी दिखाई देती है। तो ये कुछ जो आज के कविता की जो चुनौती है, वो एक समाज की चुनौती है। हमें इसको इस रूप में देखना पड़ेगा कि, और उसी में ये सब बाजारी व्यवस्था का जो तंत्र है, और उसमें पोइट की कहाँ चुनौती है। मतलब हमारी बाजारी व्यवस्था में भय और वासना, इन्हीं दो चीजों को लेकर हमारी बाजारी व्यवस्था चल रही है। और अगर कोई कवि भय या वासना के इर्द गिर्द अपना कविता करता है, तो उसकी आप देखेंगे बहुत डिमांड। जो आपने अभी जर्नैल सिंह ने कहा कि लेजर लाइफ पोएट्री लिखना, पैशन के जगह उनका ओरिएंटेशन वही है कि एक तरह से दरबारी संस्कृति को रिप्रेजेंट करना। तो कहीं ना कहीं कविता की जो सृजनात्मक शक्ति है, उसको पोएट उस शक्ति से दूर हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि आदरणीय ललित जी इन संदर्भों में कुछ अपने विचार साझा करें कि हालांकि उनकी पोएट्री मैं देखता हूँ काफी मुखर होके वो लिखते हैं। और अच्छा कहा जर्नैल सिंह आनंद जी ने कि अंग्रेजी से ज्यादा हिंदी की जो उनकी कविता है वो ज्यादा प्रखर और मुखर है। तो इन दोनों संदर्भ से अगर आप कुछ बात को और थोड़ा चर्चा करें। उसका कारण एक था ना, अंग्रेजी में थोड़ा ज्यादा चालाक हूं मैं, तो उसमें बात बिल्कुल सीधी कहने के बजाय विम्ब के सहारे कह दी जाए, फिर विम्ब को पकड़ता है कोई नहीं पकड़ता है, सिमरी को पकड़ता है कोई नहीं पकड़ता है। हिंदी में थोड़ी मेरा हाथ भी तंग है शायद, तो इसलिए सीधी सीधी बात आ जाता हूँ। कुछ ऐसे कवियों का असर है जो कि बिल्कुल सीधी बात ही कहते थे, धूमिल जैसे हैं। लेकिन मेरा ये बात आपसे कहना होगा कि हम सभी भगत सिंह का नाम तो लेते हैं, शहीद आजम भी कहते हैं, और अगर आप कहो मैं एक कविता भी आज लिख दूंगा उनके ऊपर, लेकिन उसको पढ़ते नहीं है। अब भगत सिंह ने कितना पढ़ा था अपने जीवन में इतनी छोटी उम्र में, और फिर उन्होंने एक किताब छोटी जो लिखी है एक आई कि वाई आई एम एन एथीस्ट, कि मैं नास्तिक क्यों हूं। तो ये एक विचार है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, वो पढ़ना चाहिए जॉन नौजवानों को। जो नीशे कहता है कि रिवैल्यू ऑल द वैल्यूज, सारे जो पूरे मूल्य हैं उनका पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। ये जो नीशे ने कह दिया या भगत सिंह ने कहा कि मैं एथीस्ट हूं, इसके बारे में पढ़ने के बारे में सोच बिल्कुल ही अनुपस्थित है। यानी कि कॉलेज में भी जो पढ़ाते हैं वो सिलेबस, एक्चुअली जो टीचर पढ़ाता है वो सिलेबस से बाहर पढ़ाता है। ही हैज टू टीच मोर देन द सिलेबस। अगर वो सिलेबस ही पढ़ाता है तो फिर तो वो टीचर किस बात का हुआ, वो तो फिर आजकल सब कुछ मिलता है नेट पे। पता नहीं, मेरा मेरा ये अपने मन में ख्याल है, क्योंकि हम भी कई क्लास में टीचर ने जब पढ़े हैं तो हमें वो जो बातें याद जो कि सब्जेक्ट से नहीं कुछ और अलग बात थी, वो हमें याद रहती है कक्षा की क्लास की जो भी है। तो पढ़ने का रिवाज आजकल बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर चारू अभी आप साथ अभी यहाँ बोल रही थी हमारे साथ, तो वो अभी भी कॉलेज में पढ़ा रही है, तो शी कैन स्वेयर एंड टेल ऑन ओथ कि कितने कॉलेज में जो प्रोफेसर साथ वाले पढ़ाते हैं 10% भी नहीं 5% भी ज्यादा होगा कहना कि वो कोई किताब पढ़ते हैं, इवन अखबार भी पूरी पढ़ते हैं। ऐसे हालात में डॉक्टर जरनैल का ये कहना कि कविता का रहा नहीं, तो हम लोग तो बिल्कुल एकांत के बियाबान जंगल में घूम रहे हैं, मुझे लगता है शायद। धन्यवाद। विश्वनीडम। हेलो। मे बी अनंता हेलो। भाई। हाँ, अनंत भाई। यस, सो थैंक यू सो मच ललित जी, हमारे अभिनंदन। और बहुत धन्यवाद। हाँ, जो चीज आप पढ़े हैं, तो जैसे प्रोफेसर आनंद ने बताया है
जे आपके कविता में एक स्ट्रेट कम्युनिकेशन है, और जो स्ट्रेट लाइन, मगर वो स्ट्रेट है, मगर वो स्ट्रेट क्या लिनियर है, वो क्या सरल रेखा है, और स्ट्रेट लाइन के अंदर जो सिंबल होता है, क्योंकि कविता में जो सिंबलिक होता है, एंड दैट पॉइंट्स टू अदर डायमेंशंस ऑफ रियलिटी। तो मेरा निवेदन करना है जे आपका कविता में जो सोशल रियलिज्म है, हिस्टोरिकल सफरिंग है, जैसे पार्टीशन बारे में आप लिखे हुए हैं, तो सोशल रियलिज्म के साथ साथ तो आप इसको डायरेक्टली आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, और इसके सिंबलिक डायमेंशन कैसे होता है, और आपके कविता में सिंबल को आप कैसे कल्टीवेट करते हैं, वो हमारे एक पहला सवाल है। दूसरा सवाल है जे अभी कविता में जो सोशल रियलिज्म है और सिंबलिक के साथ साथ और सेल्फ एंड स्पिरिचुअल रोमांस का जो है, सोशल रियलिज्म के साथ साथ तो एक स्पिरिचुअलिटी और रोमांस अंडरस्टूड इन अ वेरी ब्रॉड वे, जैसे आपके सम्मोहन कविता। और सो हाउ कैन वी ब्रिंग दिस डायमेंशन सोशल रियलिज्म? सर ऐसा है, मैं एक बात कहना चाहूंगा बीच में कि शब्द अपने आप में सिंबल है, वर्ड इटसेल्फ इज अ सिंबल। और अगर मैं जैसे कई कविता में एक जगह आया था कि नोआखली में गांधी के रक्त सने पांव, तो वो एक रियलिज्म नहीं है, वो सिंबल अपने आप में कि गांधी के नोआखली में गांधी के रक्त सने पांव, वो अपने आप में एक सिंबल बन जाता है। तो ये नहीं कि जो रियलिज्म है और सिंबोलिज्म, ऐसा कोई बिल्कुल जानबूझ के सिंबॉलिक एक कई लबादा पहनाया जाए कविता को, वो नहीं है। द वर्ड इटसेल्फ बिकम सिंबल, जो कि मेरे ख्याल कविता में होता है सब। आप नाइटिंगेल बोलते हो कीट्स की, अब नाइटिंगेल के बाद आपको पक्षी याद नहीं आता, आपको कीट्स की नज़म याद आ जाती है, या कोई ऐसे कई उदाहरण हो गए। खैर मैं क्षमा चाहूंगा अगर मैं गलत बात बोल रहा हूँ। हाँ, जरूर the word becomes a symbol, but what is the nature of that symbol, you know? Because there is the word, of course. Oh, I am just bringing this dimension जो historical realism के साथ साथ, जैसे ठीक ही है, that was a very beautiful example. So बस हमारे वो एक दो चीज हमारे मन में आया। और तीसरी चीज में हम जानना चाहते हैं जो आपका अपने जीवन का जो यात्रा है और इसके साथ का कविता का कैसे संजोग रहता है। So if you kindly tell us a little bit about your life's journey and its relations to poetry. नहीं ऐसा ही, वैसे तो ऑल पोएट्रीज ऑटोबायोग्राफी होनी। मेरे जीवन में ऐसा कोई चीज नहीं जो कि मैंने अंग्रेजी करता मैंने लिखा नहीं है, कुछ सिबली लिया है, जो कोई रिश्तेदार ने लिया है, सब वहां पे कविताओं में है। लेकिन ये कुछ देर जब ज्यादा राजनीतिक सोशल कविता हो रही है तब शायद उनका जिक्र नहीं आता, वरना ऑल पोएट्रीज ऑटोबायोग्राफी। ये जो मैं लिख भी रहा हूँ इसमें भी कई जगह मेरी जो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है वही आ रहे हैं। और मेरी ड्यूटी बनती है कि इतिहास जो हमारा हिंदुस्तान का इतिहास है, मेरे देश का, हिंदुस्तान के मेरे देश का इतिहास है, उसके बारे में मैं लिखूं। और जीवन में मैं पढ़ता रहा हूँ, पढ़ाता रहा हूँ, कॉलेज में पढ़ाया मैंने और प्रिंसिपल रिटायर हुआ हूँ बाद में, और जगह कई गतिविधियों में शामिल रहा मैं। मेनली अध्यापक रहा, मेरे पिता भी अध्यापक थे, दादा भी अध्यापक थे, तो अध्यापन कार्य किया है, पुस्तकें पढ़ने को मिली हैं। पिता के पास भी बहुत सी लाइब्रेरी थी, उनकी मेरी भी बहुत है। तो मेरे ख्याल एक बेसिक जो बात है, पढ़ना जरूर चाहिए, पढ़ने से आदमी बहुत सीखता है। When you read a book, your mind expands, आप अपने आप से खुल के बहुत बड़े अलग हो जाते हो। हाँ जी, so thank you Lalit ji. I just want to add one more point. Reading also unfolds the potential of human being. And
and that is something very creative, particularly when you read poetry with deep interest. वो टी एस एलियट ने शेक्सपियर के जो वर्क्स, उसके ना एक किताब है जीवसन नाइट की, उसके शुरू में एलियट ने लिखा है कि शेक्सपियर को कई लोग कई स्तर पे पढ़ते हैं, कई कहानी पढ़ते हैं, कई कैरेक्टर पढ़ते हैं, कई पोइट्री पढ़ते हैं, कई सिमरित मेटाफर्स में एंजॉय कर लेते हैं, कई ड्रामेटिक सिचुएशन में आनंद कर लेते हैं। लेकिन कहता शेक्सपियर की कोई इंटरप्रिटेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो हमारा अपना जीवन है वही इंटरप्रिटेशन है शेक्सपियर का जो हम कर रहे हैं जिंदगी में। Our own life is an interpretation of Shakespeare's work. जिस स्तर का हम जी रहे हैं वो एक तरह से शेक्सपियर से हम ले रहे हैं। पर नॉर्मली लोग क्या है, कहानी पढ़ के या ड्रामेटिक या सिचुएशन या कैरेक्टर पढ़ के खुश हो जाते हैं शेक्सपियर। एलियट से देयर इज एन ओवरऑल पैटर्न इन शेक्सपियर्स प्लेज। हर एक प्ले का अपना एक पैटर्न है, वो अपने आप में ढूंढना वो असली बात होती है। दैट्स एलियट ऑफ सेइंग अबाउट शेक्सपियर। जी विल्सन नाइट की किताब है व्हील ऑफ फायर, उसके शुरू में लिखता है वो। क्षमा करें फिर अगर मैंने कुछ ज्यादा बात कह दी तो प्लीज। Is it over? I think now. Good night. So maybe now we can come towards the concluding aspect. Minati, you can share your. Yes, Ananta. Vote of thanks. Thank you. I, Minati Pradhan, on behalf of Socialism and Vishwaneedam Center for Asian Blossoming, would like to thank today's our guest, Dr. Lalit Mohan Sharma. Congratulations to you, sir, for your new book, and thank you for enlightening us about your writings and sharing your beautiful poetry with us. Thank you so much. I would like to thank our moderator, Professor Kumar Giri, for providing us this platform to learn various subjects. Thank you, Ananta bhai. I would like to thank today's guests, other participants like Dr. Charu Sharma, Dr. Janal Singh Anand, and as usual, Dr. Ganlu ji for being present with us and attending this webinar. I would like to thank all the Facebook platform user and Zoom platform user for being with us. Please pardon me if I have forgotten anybody's name. At the last and not the least, I would like to thank our convener, Professor Randhir Kumar Gautam, for arranging such beautiful webinars for every week, and executing it so well. So, thank you all. Yeah, thank you all and good night.